if I'm audible. Can you hear me? Yes, Emil, you are audible. Can you hear me? Yes, yes, I can. Yes, we'll wait for 2 more minutes and then we'll start. Sure. Yeah. Hello, everyone. Once again, for everyone to join. So we'll of today for today's webinar. And a brief introduction about me. I am currently a partner working with Katana's Law Chamber at their Islamabad office. I have been working here for the past 2 years now, and it has been a pleasure to be a part of this great team that is helping the legal profession to go ahead, to move ahead, and to make a name for ourselves. I'll be joined today by Mr. Emil. Mr. Am I audible to everyone? Gigi, I can hear you. Can you Please. hear me? So, Mr. Emil Amjad Qureshi is an advocate of the High Court, currently leading his own law chamber by the name of Emil Amjad and Attorneys. He is based in Islamabad and Quetta as well. He is a graduate of the Australian National University, and his focused practice areas include banking, real estate, and construction laws. He has previously worked at a prominent law firm, including Farooq Khan and Mirza, and he has also been working with Ahmed Bilal Sofi and Company, which both of the firms are recognized by the Legal 500. Coming on to our today's session, our today's topic is how you have to save yourself when buying real estate. In today's uh, in today's world, or in today's market, Pakistan is one of those countries where real estate is really booming. But as far as a lot of people are gaining profit from it, at the same time, a lot of people are also facing scams whereby their hard-earned money is lost to people who scam them, and at the end of the day, the courts cannot also help them because of the mafias that are operating these
these properties in Islamabad at the very least. So over to you, Mr. Emil Amjad. Can you briefly talk about how can one save himself when buying real estate in Pakistan? जी थैंक यू वेरी मच हफीज फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड आई एम श्योर दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू द हार्ट्स ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट इवन लॉयर्स। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि ज़्यादा तो हमारे यहाँ पे बिजनेसेस हैं नहीं। अभी कुछ बिजनेसेस एक्सपैंड हो रहे हैं बट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर रहा है जिसमें पाकिस्तानियों का, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं चाहे वो लोकल पाकिस्तानीज हैं, उनका काफ़ी पैसा लगा हुआ है एंड पीपल हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी from this sector, regardless of the fact that there have been a lot of scams, a lot of frauds that have been committed in recent years within this sector. But regardless of this fact, ये sector है बड़ा lucrative पाकिस्तान के अंदर। Before I start talking about the issues, the kind of scams that people on a regular basis face within this sector, मैं सबसे पहले तो आप लोगों का जो चेम्बर है उसकी थोड़ी सी तारीफ करना चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि मैं फॉर क्वाइट अ वाइल आई हैव बीन फॉलोइंग द काइंड ऑफ वर्क दैट योर चेम्बर हैज़ बीन डूइंग। चाहे वो ये वेबिनार सीरीज कंडक्ट करना हो ऑन डिफरेंट लीगल इश्यूज, या उसके अलावा जो आप लोग पब्लिक इंटरेस्ट का काम करते हैं, चाहे वो आप लोगों का कुरान की ट्रांसलेशन और डिसमिनेशन से रिलेटेड केस हो, चाहे वो जो आप लोगों का लीगल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को रेज करने का, हफीज आई थिंक वी हैव लॉस्ट द कनेक्शन, अच्छा जी ठीक है, चाहे वो आप लोगों का जो लीगल स्टैंडर्ड्स और लीगल एजुकेशन से रिलेटेड पब्लिक इंटरेस्ट का केस है, तो उसके लिए हमारे जैसे, लेकिन लॉयर का जो प्रोफेशन है उसमें हमारा टाइम इज आवर एसेट। तो वी बीइंग कमर्शियल लॉयर्स, हमने अपना घर भी चलाना होता है और हमने ये बाकी चीज़ें भी करनी होती हैं। तो अगर आप अपने प्रेशियस टाइम के अंदर से वक्त निकाल के इन इनिशिएटिव्स को करते हैं, उसके लिए हैट्स ऑफ एंड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम अस द कम्युनिटी। अब कमिंग टू द टॉपिक, सर बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट के अंदर बहुत से इश्यूज हैं, बहुत से डिफरेंट किस्म के स्कैम्स और फ्रॉड्स कमिट होते हैं। ये समझने के लिए कि जो फ्रॉड्स और स्कैम्स कमिट होते हैं वो उनका नेचर क्या है, उनका टाइप क्या है, सबसे पहले हमें इस ट्रांजैक्शन को समझना पड़ेगा कि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने जाते हैं मार्केट के अंदर एज अ बायर, अक्सर पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि कोई भी बंदा किसी भी लीगल ट्रांजैक्शन में जब पड़ता है वो किसी लॉयर की मदद नहीं लेता, स्पेशली जब वो ये रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस के अंदर डलता है। ज्यादातर आपकी रिलायंस होती है रियल एस्टेट एजेंट्स की तरफ, जो कि अक्सर इस तरह की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व पाए जाते हैं। तो इस वजह से आई थिंक ये जिस इस ट्रांजैक्शन को जितना सिंपल समझा जाता है, ये ट्रांजैक्शन इतनी सिंपल है नहीं। अगर आप पाकिस्तान के रियल स्टेट सेक्टर के अंदर इस तरह के फ्रॉड्स को अवॉइड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जब भी आप अपने हार्ड अर्न मनी, द वे यू सेड इट, अगर उसको आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर किसी लॉयर को कंसल्ट करें और उससे समझें कि ट्रांजैक्शन है क्या। तो बेसिकली जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जाते हैं, द फर्स्ट एंड द मोस्ट एसेंशियल थिंग दैट यू हैव टू सी is that whether the person from whom you are buying that property is actually the real owner of that property or not. मैं आपको अपनी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली मैंने खुद भी एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मैं गया, और मेरे साथ एक जो बंदा था जिसने उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुआयदा बराए खरीद फरोख्त, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अग्रीमेंट टू सेल, वो अग्रीमेंट टू सेल जब मेरे साथ उसने साइन की, अब प्रॉपर्टी तो उसकी शायद बहन की थी, आई थिंक चाची की थी, जिसकी भी थी, बट उन्होंने खुद अपने आप को ओनर बना के उस अग्रीमेंट टू सेल के अंदर अपना नाम लिख दिया। अब वो लिखा है इस वजह से कि जी आपको पता है पाकिस्तान है, यहाँ पे औरतें इस तरह से आती नहीं हैं और अग्रीमेंट्स वगैरह प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिस में, तो इस बेसिस के ऊपर, इवन दो दैट पर्सन वाज नॉट ट्राइंग टू कमिट अ फ्रॉड, बट चाहते ना चाहते हुए क्योंकि प्रैक्टिस में चीजें ऐसे चल रही हैं, उस बंदे ने अपना नाम डाल दिया। अब जब उस बंदे ने अपना नाम डाल दिया तो आई वॉज अ लॉयर, इफ इट वॉज समवन एल्स अ ले पर्सन, दैट पर्सन वुड हैव साइंड दैट एग्रीमेंट, एग्जीक्यूटेड दैट एग्रीमेंट। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि जी आप मुझे ये साबित करें कि इस प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास है भी कि नहीं। Hmm. पहली चीज जो आपने देखनी है वो ये देखनी है कि जिसके साथ भी आप अग्रीमेंट करने लगे हैं, अग्रीमेंट टू सेल और बयाना देने लगे हैं, क्या वो बंदा ओनर है भी या नहीं, नंबर वन। Number second is that how do you determine that that person is the owner of the property or not?
वो सिर्फ सर एक ही चीज से डिटरमिन किया जा सकता है, एंड दैट थिंग इज द टाइटल डॉक्यूमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। पाकिस्तान के अंदर जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, लैंड है या लैंड के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन है, उस कंस्ट्रक्शन की या लैंड की जो टाइटल डॉक्यूमेंट होता है, दैट इज अ सेल डीड। अ सेल डीड दैट इज रजिस्टर्ड अंडर द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट। हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन में पहले पड़ जाते हैं, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स को हम देखते नहीं हैं, सेल डीड को हम देखते नहीं हैं, और बाद में हमें पता लगता है कि जी जिस कॉन्ट्रैक्ट में जिस बंदे के साथ हमने ये एग्जीक्यूट किया उसके पास तो असल में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री थी ही नहीं। ना हमने प्रॉपर्टी का इंतकाल चेक किया, ना हमने रजिस्ट्री चेक की। तो पहला फ्रॉड तो आपके साथ यहाँ पे हो जाता है जब आप प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक करते। इस पे सुप्रीम कोर्ट की बे इंतहाशा जजमेंट्स हैं जो ये कहती हैं कि जी जो अग्रीमेंट टू सेल है, इट डज नॉट कन्फर टाइटल on any person. Only the sale deed is the document that can confer title on the person or can establish ownership of a person. तो पहला सर तो चीज ये है कि आपने ओनरशिप देखनी है। अब जब ओनरशिप से आप आगे निकलते हैं तो दूसरा किस्म का फ्रॉड आपके साथ क्या हो सकता है? दूसरा फ्रॉड ये हो सकता है कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा हो, कोई स्टे ऑर्डर पास हुआ हो, वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी किसी डिस्प्यूट के अंदर चल रही हो, या उस प्रॉपर्टी के ओनर ने उस प्रॉपर्टी को एज रहन या एज मॉर्गेज किसी बैंक के पास रखवाया हो। आपने अगर एक मॉर्गेज शुदा प्रॉपर्टी या एक कोर्ट के अंदर जिस प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट चल रहा है उसको खरीद लिया और बाद में आपको मालूम हुआ, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्कैम्स दैट हैज बीन कमिटेड विद यू। अब ना हम्म। हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि जी ये बहरहाल मैं इन चीज़ों के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर सेकंड हाफ के अंदर आता हूँ। पहले मैं आपको मोटा मोटा खाली आइडेंटिफाई कर दूं कि स्कैम्स किस किस्म के होते हैं। तीसरे किस्म का स्कैम, सर तीसरे किस्म का स्कैम ये होता है कि आप किसी से प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो बंदा आपको कहता है कि जी मैं तो इस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं हूँ, बट मेरे पास इस प्रॉपर्टी को खरीदो फरोख्त करने की पावर ऑफ अटर्नी है। तो आप उसके साथ एक ट्रांजेक्शन में डल जाते हैं। बाद में आपको पता लगता है कि जी ये बंदे के पास तो पावर ऑफ अटर्नी थी ही नहीं, या वो आपको किसी कागज के ऊपर एक पावर ऑफ अटर्नी दिखा देता है और आपको लगता है कि जी हाँ ये तो वाकई बंदे ने नीचे साइन की हुई है। अब उसको ये नहीं पता कि पावर ऑफ अटर्नी इज ऑल्सो अ रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट। वो भी अगर सेल डीड की तरह रजिस्टर नहीं हुआ हुआ तो उस पावर ऑफ अटर्नी की भी कोई यूज नहीं है। तो ये हो गया आपका तीसरा स्कैम। चौथा और जो सबसे प्रिवेलेंट इस वक्त मार्केट के अंदर स्कैम चल रहा है वो है प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज का। वो स्कैम ये है कि जी आपको एक पहाड़ दिखा देते हैं ले जाके एक जगह पे जो कि बिल्कुल अनडेवलप्ड होती है, कोई उधर काम नहीं हुआ होता, कुछ एक आध रोड शोड बना के लोगों से पैसे बटोरने का तरीका है, और आपको कहते हैं कि जी ये प्रॉपर्टी की फाइल है, इस फाइल को आप अपने पास रखें, 10 साल तक आप हमें इतने पैसे देते रहें, और उसके बाद वो जो कोई पहाड़ की कोई कोने की चोटी है उधर आपका जो है ना बड़ा ही एक मजेदार किस्म का प्लॉट आपको आफ्टर 5-8 ईयर्स मिल जाएगा। तो लोग इस स्कैम के अंदर आ जाते हैं। होता क्या है कि वो पहाड़ का जो एरिया है वो डेवलपर को खुद भी नहीं पता होता कि जी ये कितना एकड़ है, कितने स्क्वायर फीट है, या इस पे कितने प्लॉट्स बन सकते हैं या फ्यूचर में बनेंगे। वो धड़ाधड़ अलॉटमेंट सर्टिफिकेट्स इशू करना शुरू करते हैं अपने लेटर हेड के ऊपर, और वो जितनी भी लोग होते हैं, आवाम होते हैं जो उनको खरीदने के लिए आती है, उन सबको अलॉटमेंट्स पकड़ाता जाता है। जिस वक्त वो पहाड़ कटता है या नहीं कटता, बाद में रियलाइज होता है कि जी वो एक टुकड़े के ऊपर ही 8-8 लोगों को अलॉटमेंट सर्टिफिकेट्स इशू हुए हैं, और प्रॉपर्टी किसी के नाम पे ही नहीं है। सो दिस इज अनदर वेरी वेरी आप कहेंगे डेंजरस काइंड ऑफ स्कैम दैट इज बीइंग कमिटेड बाय प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स इन पाकिस्तान। तो ये तो मैंने आपको बता दी टाइप्स। अगर आपका कोई और सवाल है फर्दर तो वी कैन प्रोसीड अहेड। But coming back to the private housing schemes, I think this is the most important one, as you also pointed it out. लेकिन प्राइवेट हाउसिंग स्कीम की जब हम बात करते हैं, सो व्हाई आर people tend to move towards it, or people tend to invest in this इदारा है उनका कोई सॉरी आपकी या आवाज थोड़ी हफीज, उन्होंने कोई you're अगर not। लॉन्च की हुई है, जी व्हाई सॉरी कैन आपकी यू हेयर आवाज मी कट नाउ? गया है, आई कुडंट हियर यू। कैन यू जी ऐसे कैन यू बीच हेयर मी में नाउ? जी 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 जी। Okay, so my question was, okay, you talked about the private housing schemes being one of the most prevalent scams that is currently happening in Pakistan. But why do people tend to invest in these private housing schemes rather than going for something that is recognized by government authorities like CDA or LDA?
Why do people go for these societies? अच्छा सर, ये सबसे पहले तो ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, सीडीए है या चाहे आरडीए है या क्यूडीए केडीए, ये समझने की जरूरत है ये है क्या। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारा मसला ये है कि यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए बेइंतहाशा। और हमने उन्हीं डिपार्टमेंट्स को तीन चार डिपार्टमेंट्स बना के उन्हीं डिपार्टमेंट्स को ओवरलैपिंग मैंडेट्स भी दे दिए। आपने इस्लामाबाद के अंदर, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, इस्लामाबाद के अंदर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी, उसका अरबों रुपए का आपने बजट बना दिया। बजट बनाने के बाद आपने उसको मैन पावर भी दे दी, सब कुछ दे दी। साथ आपने 18वीं तरमीम पास करवा दी। और आपने कहा जी ये जितने भी म्यूनिसिपल फंक्शंस हैं, चाहे वो जोनिंग के हैं, बिल्डिंग कंट्रोल के हैं, चाहे डेवलपमेंट ऑफ पार्क्स, रोड्स, नेटवर्क्स, वट वो आपने लोकल गवर्नमेंट को डिवॉल्व कर दिए। अब इस तरह के बड़े बड़े अथॉरिटीज बन गई हैं जिनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है ये काम करने का। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है लोकल गवर्नमेंट के पास, लेकिन बजट और मैन पावर है सीडीए के पास। अब सीडीए काम कर रही है लोकल गवर्नमेंट का, या आरडीए काम कर रही है लोकल गवर्नमेंट का, जो कि एक्चुअली उन इदारों को करना चाहिए। बहरहाल अब ये अथॉरिटीज इतनी बड़ी हो चुकी हैं और इतनी पुरानी है कि इनको खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी नेसेसिटी भी बहुत ज्यादा हो गई है। अब आज से 8-10 साल पहले आप चले जाएं तो ये ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता था जी कि कौन सी सोसाइटी को सीडीए का अप्रूवल मिला है या आरडीए का अप्रूवल मिला है कि नहीं। सोसाइटीज बन जाती थी, उनकी मार्केटिंग होती थी, लोग उसमें इन्वेस्ट करते थे। कुछ सही सोसाइटीज होती थी और कुछ उनके साथ स्कैम हो जाता था। जब ये स्कैम्स ज्यादा होना शुरू हुए, जैसे मैंने आपको बताया कि जी एक एक प्लॉट की 10-10 अलॉटमेंट सर्टिफिकेट्स निकलना शुरू हुई, पीछे ओनरशिप नहीं थी, प्रॉपर्टी के ऊपर कोर्ट केसेस थे, तो फिर ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज का रोल ओवर टाइम बढ़ता गया। गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और गवर्नमेंट ने कहा कि जी अब वही हाउसिंग सोसाइटीज लीगल करार दी जाएंगी जिन्होंने इन डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लिया। अब इनका जो रोल है हाउसिंग प्राइवेट हाउसिंग अथॉरिटीज को रेगुलेट करने में, वो क्या है, वो मैं थोड़ा सा आपको एक समराइज्ड वे में एक्सप्लेन कर दूं। ये बेसिकली जो हाउसिंग अथॉरिटी है उसका जो अप्रूव्ड, उनका वो एक लेआउट प्लान बनाती है कि जी ये हमारी हाउसिंग अथॉरिटी होगी, ये 100 एकड़ के ऊपर लेट सपोज बनेगी, यहाँ पे इसका पार्क होगा, इतने प्लॉट होंगे, ये प्लॉट के नंबर होंगे। एंड दैट प्लान इज देन गिवन टू द सीडीए और आरडीए और एनी कंसर्न्ड अथॉरिटी। वो अथॉरिटी फिर उस लेआउट प्लान को बहुत डिटेल में स्क्रूटनाइज करने के बाद अप्रूव करती है। सो दैट इज द फर्स्ट अप्रूवल दैट इज ग्रांटेड बाय दीज डेवलपमेंट अथॉरिटीज टू ऑथेंटिक प्राइवेट हाउसिंग अथॉरिटीज। ये हो गया पहला। सेकंड है गिव द प्रोविजन ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी। एनओसी आपको तब मिलता है जब आपको 22 से 27 और रिक्वायरमेंट्स हैं इन प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज को जो कंप्लाई उनको करनी पड़ती है। उसके बाद उनको एक एनओसी इशू हो जाता है। जब वो एनओसी इशू हो जाता है तो अब बड़ा क्लियर हो जाता है कि जी ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड प्राइवेट हाउसिंग अथॉरिटी है, इसमें इतने ही प्लॉट्स हैं, ये उसका नक्शा है, और इस नक्शे के अंदर जो प्लॉट्स हैं बस वही बेचे जा सकते हैं। उसके अलावा कोई आगे पीछे ऐसा काम होगा नहीं। अगर होगा तो इट विल बी रिपोर्टेड by that person to the concerned authority, और फिर concerned authority will be responsible to take action against that private housing authority। तो ये एक किस्म की प्रोटेक्शन बनाने की उन्होंने कोशिश की। Okay, so coming back to the, you mentioned also NOCs. So coming back to that, अब आजकल, for example, if you intend to make a property or launch a housing scheme in Islamabad, is it only the CDA that you need to take the approval from? क्योंकि आजकल हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि आपको तो सीडीए के एनओसी आपको वो दिखा देते हैं, लेकिन सीडीए के एनओसी के बाद वो कहते हैं कि आपने एनवायरमेंटल वालों से एनओसी नहीं लिया हुआ। So what will a person do, or what can a buyer do, for example, if he wants to invest in that property? चलो वो लॉन्च भी हो गई है, लॉन्च होने के बाद उसके बैनर्स भी आ गए हैं, फाइलें भी आ गई हैं, वो सिर्फ आपको एक एनओसी दिखाते हैं, बाद में जाके आपको पता चलता है कि इन्होंने 2-3 एनओसीज और लेनी थी, वो इनके पास नहीं है, और वो प्रोजेक्ट 5-10 साल के लिए फंस जाता है। तो उसकी लिटिगेशन भी आ जाती है, लिटिगेशन में स्टेज भी हो जाते हैं, वो प्रोजेक्ट उधर ही बैठ जाता है। फिर 10 साल बाद कोई और प्रोजेक्ट आ जाता है, वो उसको टेक ओवर करता है और उस पर कोई और प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। सो व्हाट आर सम ऑफ दीज एनओसीज अदर देन सीडीए जो आपको लगता है दैट पीपल शुड नो अबाउट, और पीपल शुड आस्क द एजेंट्स अबाउट बिफोर गोइंग अहेड एंड मेकिंग दैट परचेज? सर प्राइमरीली तो जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको जो प्रॉपरली रेगुलेट किया जाता है वो तो इन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की ही रेगुलेशंस हैं। उसके अलावा डेफिनेटली ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड रेगुलेशंस, और बाकी अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो एसएससीपी भी उसको एक किस्म का कंपनी की जो इंटरनल मैनेजमेंट है और फंक्शनिंग है उसको भी रेगुलेट कर रहा होता है। लेकिन एक बायर के परस्पेक्टिव से
मैं फिर आपको अपना एग्जांपल दूंगा कि मैं रिसेंटली ये प्रॉपर्टी लेने निकला था, और मैं उस हाउसिंग सोसाइटी का नाम नहीं लूंगा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल हाउसिंग सोसाइटीज इन इस्लामाबाद राइट नाउ। द डेवलपर इज़ वेरी ऑथेंटिक, वेरी क्रेडिबल। लेकिन वो भी इस तरह का काम कर रहे हैं। अब काम क्या हो रहा है, ये आप समझें इस चीज़ को। उन्होंने आपको कहा कि जी उनको अप्रूवल मिल जाता है या एनओसी मिल जाता है, लेट सपोज 200 एकड़ पे। ठीक है जी, 200 एकड़ का एनओसी उनको मिल गया, मैप उनका अप्रूव हो गया, लेकिन अब उनके पास 200 एकड़ से पीछे भी 200-300 एकड़ लैंड अवेलेबल है। व्हाट दे डू इज, जिसको हम डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के जुमरे में बिल्कुल ला सकते हैं, वो उस 200 एकड़ का जो उनको अप्रूवल मिला हुआ है, वो उसके अलावा जो पीछे 200 एकड़ है जिसका अप्रूवल उनको नहीं मिला हुआ, वो लोगों को ये मार्केट करके बताते हैं कि जी हम तो सीडीए अप्रूव्ड हैं। लोग जब इन्वेस्टमेंट करने आते हैं कहते हैं जी आगे वाले सेक्टर्स तो 1.5-1.5 करोड़ का प्लॉट है, पीछे आपको 50 लाख का मिल जाएगा, 60 लाख का मिल जाएगा। लोग कहते हैं अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, अप्रूव्ड सोसाइटी है, पीछे हमें तो प्लॉट्स मिल रहे हैं। आप जब प्लॉट लेते हो, बिकॉज दे themselves the buyers have not seen the approved layout plan, वो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। बाद में उनको पता लगता है कि जी ये जो प्लॉट है ये तो उसमें लेआउट प्लान के अंदर, अप्रूवल के अंदर था ही नहीं। तो इस वजह से ये एक और किस्म की डिसेप्टिव प्रैक्टिस है जिसके ऊपर अभी तक अनफॉर्चुनेटली सीडीए ने भी कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया, आरडीए ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ये इदारे खुद भी कभी कभार इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इन्होंने भी पैसे लिए होते हैं, इन्होंने रेगुलर बेसिस पे इन सोसाइटीज़ की इंस्पेक्शन करनी होती है अंडर देयर रेलिवेंट लॉज। लेकिन ये जब जाते हैं इनको पता लगता है कि जी अच्छा जी लेआउट प्लान में तो पार्क था, लेकिन पार्क की जगह इन्होंने यहाँ पे 4 प्लॉट और बना के पैसे बना लिए। तो वो उनसे पैसे ले लेते हैं और वो कहते हैं ठीक है जी चलें, हम रिकॉर्ड के अंदर फिलहाल इसको आइडेंटिफाई नहीं करते, इस डिस्क्रिपेंसी को, आप इसको चलाते रहें। तो बहरहाल इस तरह की चीज़ें हैं। इसलिए जितने भी बायर्स हैं, अगर वो कोई प्लॉट लेना चाह रहे हैं और उनको अगर किसी रियल एस्टेट एजेंट ने कोई प्लॉट दिखाया है, तो वो आरडीए की वेबसाइट पे जाएं, सीडीए की वेबसाइट पे जाएं। इन सब के लेआउट प्लान्स, इनके एनओसीज, उनकी डेट्स, सब कुछ, एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर देयर। सो ओपन इट फॉर योरसेल्फ, सी इट फॉर योरसेल्फ, एंड देन एंगेज। ओके, सो कमिंग बैक टू इनिशियली आपने मेंशन किया था कि व्हेनेवर यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी, आई थिंक दिस इज अ वेरी कॉन्सेप्ट व्हेन इट कम्स टू यूरोप, व्हेन इट कम्स टू द यूनाइटेड किंगडम और द यूएस, जहाँ पे एक प्रॉपर कन्वेंसिंग लॉयर्स होते हैं जो सिर्फ काम ही कन्वेंसिंग का करते हैं। यू मेंशनड अर्लियर कि जो अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है सो यू शुड कंसल्ट अ लॉयर। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू फाइंड कि ये लॉयर्स भी उन प्रॉपर्टी एजेंट्स के साथ ही मिले होते हैं और उनसे अपना कमीशन उठा रहे होते हैं कि मैं आपके पास बंदे लेके आता हूँ, इतने बंदे लेके आता हूँ, क्योंकि फॉर एग्जांपल अब अब थोड़ी सी अवेयरनेस लोगों में भी आना शुरू हो गई है। सो दे डू कम टू अस फॉर एग्जांपल एज वेल, दे डू कंसल्ट विद अस। बट हाउ, फर्स्टली ये तो एक तो इस पॉइंट को आप इस पे पुट सम लाइट ऑन दिस कि व्हाट इफ द लॉयर इज इन्वॉल्व इन इट? Is there any criteria that, or is there any requirement that a person should fulfill before going to a lawyer? Or, and secondly, agar for example, if as a lawyer you are approached by a client, how can a lawyer help that client, and in what scenario can it be more effective? सर अनफॉर्चुनेटली ये देखें ना, पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि स्कैम के ऊपर स्कैम। ये वही बात है कि आप के पहले आपके साथ स्कैम हो जाए, आप जाके कोई लॉयर हायर करें, वो भी आपके साथ स्कैम कर दे। तो इस वजह से जब भी आप चाहे कोई लॉयर सेलेक्ट करें या कोई हाउसिंग सोसाइटी सेलेक्ट करें, तो ज़रा थोड़ी सी मार्केट रिसर्च कर लें कि जी इन्होंने इससे पहले क्या काम किया हुआ है, क्या इनकी कोई क्रेडिबिलिटी भी है, इन्होंने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो कि एक हाई अच्छे स्टैंडर्ड के ऊपर बना हो। अब तो बहरिया टाउन जिसको कहते थे कि जी वन ऑफ द लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर्स इन पाकिस्तान, उन्होंने ऐसे ऐसे स्कैम्स कर दिए, चाहे वो कराची के अंदर मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ $460 बिलियन का उनका मैटर था, जिसमें उन्होंने सरकार से, और आप सोच समझें इस चीज़ को कि मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी से 460 बिलियन, आई थिंक रुपीज़ है, डॉलर्स, आई एम नॉट श्योर, बट 460 बिलियन की जो है ट्रांजेक्शन उन्होंने की। तकरीबन 16,500 एकड़ ज़मीन बेची गवर्नमेंट ने उनको। उन्होंने गवर्नमेंट को पैसे ही नहीं दिए, आधे पैसे दे के रुक गए। जब ये चीज़ आइडेंटिफाई हुई और उनसे पूछा गया कि जी ये आपने पैसे क्यों नहीं दिए, तो वो कहते हैं हमें तो पूरा प्लॉट गवर्नमेंट ने दिया ही नहीं है, सारा 16,500 एकड़। तो कोर्ट में केस था। जब उस पूरे एरिया की पैमाइश कराई गई, उसको मेजर कराया गया, तो पता ये लगा कि 16,000 नहीं बल्कि पता नहीं 20,000 एकड़ बहरिया टाउन कब्जा करके बैठा हुआ है। तो सबसे पहले तो उनका उस पे से कब्जा हटाया गया, और कब्जा हटाने के बाद फिर उनसे उसी वक्त 460 बिलियन रुपीस लेकर इस मैटर को सेटल करवाया गया। तो ये तो आपके हो गए क्रेडिबल जो अच्छे डेवलपर्स हैं।
तो इस वजह से जित आप बस केयरफुल ही हो सकते हैं, बाकी तो ऑब्वियसली अल्लाह मालिक है, स्कैम तो किसी के साथ भी हो सकता है। बट ये जो अग्रीमेंट्स हैं आपकी, चाहे वो आप शुरू में मुआयदा बराए खरीद फरोख्त बनाते हैं, चाहे आप अपनी रजिस्ट्री ड्राफ्ट करवाते हैं, चाहे आप जो डॉक्यूमेंटेशन है, एनईसी हो गया प्रॉपर्टी का, कंप्लीशन सर्टिफिकेट इफ इट्स अ कंस्ट्रक्टेड रेजिडेंस, बिल्डिंग परमिट, अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान, ये सारी चीजें एटलीस्ट जो सेलर है उससे मांगे जरूर। ऐसे ना करेंगे वो बस जो आपको बता दे और आप कहें जी ठीक है बस अल्लाह वाले भरोसे हम जो है ना जिधर साइन कराना है करा लो। उससे पूछें, सवाल पूछें, डॉक्यूमेंटेशन मांगे, और अगर वो ना दे तो प्लीज मूव टू अ डिफरेंट सेलर और टूवर्ड्स अ डिफरेंट डेवलपर। Okay, Emil, so we are done with that part. अब आपने अब we will now come to कि ठीक है, आपने प्लॉट खरीद लिया है, आपके साथ स्कैम हो गया है. हम्म। What are the next steps now? For example, if you should you go to register an FIR against them? Should you go and register a civil case against them? आप उनके खिलाफ स्टे ले लो, आप उनके खिलाफ रिकवरी का सूट फाइल करो. So naturally, what will be the next step for a person जिसके साथ स्कैम हो गया हो, फ्रॉड हो गया हो, एंड ही हैज़ रियलाइज कि यार अब तो मेरे 50 लाख रुपए चले गए हैं. लेकिन अब फॉर एग्जांपल एक प्लॉट 1.5 करोड़ का था, उसने 50 लाख रुपए दे दिए, अब करोड़ रुपए उसके रहते हैं. लेकिन वो कहता है कि एक तो ये कि मुझे करोड़ रुपए दे के मुझे वो प्लॉट चाहिए. हम्म। सेकेंडली वो कहता है कि नहीं, इसको जाने दो, मुझे अपने पैसे ही चाहिए. सो व्हाट विल बी, और एटलीस्ट व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रिकवरिंग योर मनी और गेटिंग द प्रॉपर्टी दैट यू हैव बीन प्रॉमिस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट? सर नाउ एज ए लॉयर यू वुड नो इट बेटर देन मी कि अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस कमिट हो गया है, लेट सपोज आपके साथ बिल्कुल एक ब्लेटेंट फ्रॉड हो गया है जहां पे आपने प्रॉपर्टी भी खरीद ली है और पता लगा है कि जिससे खरीदी थी वो तो ओनर ही नहीं था, वो तो उसने डॉक्यूमेंटेशन भी फोर्ज की थी, इंतकाल भी फोर्ज लाया था, सेल डीड भी फोर्ज थी, तो फिर तो आप कोई सिविल रेमेडी उसके खिलाफ कर ही नहीं सकते ना। फिर आप क्या उसको लीगल नोटिस भेजें कि आप डायरेक्ट जाएं पुलिस स्टेशन, जब उसके फोन भी बंद हो गए हैं, जब आपका राब्ता भी नहीं हो पा रहा, देन दी ओनली रिकोर्स यू हैव इज टू गो टू अ पुलिस स्टेशन एंड फाइल एन एफआईआर। तो ये हम्म. तो आप आपके साथ अगर इस तरह का फ्रॉड होता है तो एफआईआर इज द ओनली ऑप्शन, एंड वो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आप उसको सेंटेंस करवाएं। अगर लेट सपोज आपके साथ कोई इस तरह की चीज हो गई है जहां पे आपने किसी के साथ एक अग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट किया है, और वहां पे अग्रीमेंट टू सेल में ये लिखा हुआ था टर्म्स एंड कंडीशंस में कि जी ये प्रॉपर्टी 3 महीने बाद आप लेट सपोज रजिस्ट्री के थ्रू ट्रांसफर कर दो, वो बंदा आपके नाम पे ट्रांसफर कर देगा। लेकिन 3 महीने बाद आपने उसको बयाना भी दे दिया, 50 लाख रुपए भी दे दिए, करोड़ की आपकी डील हुई थी, बट यू पेड 50 लैक्स, 50 लैक्स वो स्टिल रिमेनिंग। और आपने कहा कि अब वो बंदा पीछे से मुकर गया, उसने कहा कि जी मैं तो अब ये प्लॉट नहीं बेचता, या मैंने प्लॉट आगे किसी और को बेच दिया, या मेरी उसके साथ कोई एग्रीमेंट हो गई है 1.5 करोड़ की। तो उस सिचुएशन में एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ दैट एग्रीमेंट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के नीचे आई थिंक सेक्शन 53A है, उसके जुमरे में आती है चीज कि जहां पे आपने एग्रीमेंट टू सेल कर लिया है लेकिन आपने रजिस्ट्री नहीं करवाई, तो अब आपके पास ऑप्शन है। आप चाहें तो उस पार्टी के ऊपर ये केस भी करवा सकते हैं कि अब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करे और प्रॉपर्टी आपके नाम पूरे तरीके से ट्रांसफर करवाए। या अगर आप लेट सपोज कहते हैं कि यार अब मैंने इस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं पड़ना है, यहाँ पे तो बहुत मेस बन चुकी है, तो आप रिकवरी का सूट फाइल करके उससे पैसे भी निकलवा सकते हैं। तो इस वजह से ये जरा ये भी आपको एक अच्छा लॉयर ही बता सकता है कि यार ये अब आपका डिस्प्यूट सिविल तरीके से ज्यादा बेहतर रिजॉल्व हो सकता है, या ये इतना खराब हो चुका है कि अब इसमें सिविल रेमेडी आपके लिए कोई नहीं है। ये अब बेहतर है कि आप एफआईआर ही फाइल करें और उसको बंदे को पकड़वाएं, और आगे जो भी है अगर रिकवरी होगी रिकवरी, वरना उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो दो, और साइमल्टेनियसली देयर आर आल्सो इंस्टेंसेस वेयर यू कैन आल्सो फाइल अ सिविल केस एंड यू कैन आल्सो फाइल अ क्रिमिनल केस। दोनों रेमेडीज को आप साथ साथ परस्यू कर सकते हैं, लॉ में कोई बार नहीं है। हाँ, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई वाज कमिंग टू. क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आज मैं अपना एक सिविल केस या सिविल सूट इनिशिएट करता हूँ, तो वो जाके 1-2 जनरेशन के बाद ही जाके डिसाइड होगा. एंड दैट इज़ ट्रू एज वेल. आजकल एज लॉयर्स हम जो केसेस देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो वो पिछले 40-50-60 सालों से फंसे हुए हैं. कभी कोई वकील नहीं आ रहा, कभी जज साहब नहीं होते, कभी एक चीज़ हो रही है, कभी दूसरी चीज़ हो रही है. सो डज आर हाउ डू द कोर्ट्स रिस्पॉन्ड टू दीज स्कैम्स एज वेल? अब फॉर एग्जांपल क्रिमिनल केसेस हैं, तो क्रिमिनल केसेस में अगर मर्डर हुआ हुआ है तो उसमें द कोर्ट आर वेरी मच पॉजिटिव, और दे ट्राई टू
मेक द प्रोसेस अ बिट ईजियर और अ बिट फास्टर। लेकिन जहाँ पे सिविल साइड पे हम आते हैं, हम केसेस फाइल करते हैं, तो पैसे तो आपके चले गए हैं। बेशक आपने केस फाइल कर दिया है, स्टे मिल गया है आपको, कुछ और रिलीफ मिल गया है, लेकिन जब अल्टीमेट रिलीफ की बात आती है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आर देयर एनी अदर प्रोसीजर्स इन्वॉल्व? फॉर एग्जांपल, जिस तरह आजकल हम एडीआर देख रहे हैं, तो अगर इफेक्टिव प्रोसीजर कोर्ट के अलावा और कुछ पॉसिबल हो सकता है इसके अलावा, या नहीं हमें बस पैसे चले गए हैं, ना वी विल स्टे इन द कोर्ट अनलेस एंड अनटिल इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट? सर आपने बहुत ही कमाल की बात की है कि हमें असल में जो है ना, कोर्ट से भी डरा दिया गया पाकिस्तान में। तो जी कोर्ट जाएंगे तो पता नहीं डेकेड्स तक केसेस चलेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये कुछ प्रैक्टिस ऐसी चलती रही काफ़ी कुछ सालों से पाकिस्तान के अंदर, कि जो लिटिगेंट है या जिसके साथ फ्रॉड हो गया है या इस तरह का, सॉरी आपकी, अच्छा, तो जो बंदे हैं वो अब डरते हैं कोर्ट जाने से, यही वजह कि जी ये तो एक डेकेड दो डेकेड तक इनका मैटर लंबा एक्सटेंड हो जाएगा। इसको रिजॉल्व करने का जो बिल्कुल आप लोगों ने, आपने सही कहा, जो इनिशिएटिव लिया हुआ है कि एडीआर की तरफ आए। सबसे पहले तो अगर डिस्प्यूट ऐसा है जहाँ पे बिल्कुल क्लियर फ्रॉड नहीं कमिट हुआ और कुछ गलती एक पार्टी की है, कुछ गलती दूसरी पार्टी की है, तो मीडिएशन और आर्बिट्रेशन के थ्रू ये चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं इन अ मोर एक्सपीडिशियस मैनर। लेकिन ये आर्बिट्रेशन का क्लॉज, ये सौ सौ साल पुरानी जो अग्रीमेंट टू सेल के टेम्पलेट्स हैं और सेल डीड्स के टेम्पलेट्स हैं, इनमें कौन डालेगा? वहां पे तो लिखा होता है जी, द कोर्ट्स ऑफ दिस सिटी आर गोइंग टू एक्सरसाइज एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन इफ अ डिस्प्यूट अराइजेज विद रिगार्ड्स टू एनी मैटर बिटवीन द पार्टीज। आप डाल दें उसमें आर्बिट्रेशन, आपको कौन सा कानून मना करता है? आप उसमें मीडिएशन डाल दें। तो वही बात है कि अगर वो लॉयर ड्राफ्ट करेगा, आप जैसा लॉयर ड्राफ्ट करेगा तो वही चीजें डालेगा। जब कोई रियल एस्टेट एजेंट ड्राफ्ट करेगा तो वो तो फिर उसमें उल्टी सीधी चीजें डालेगा। और हमारा मसला ये है कि हम वो शुरू के 50,000 1 लाख रुपए जो हमने एक लॉयर को देके अपनी एग्रीमेंट को स्क्रूटनाइज कराना होता है, वेट कराना होता है या ड्राफ्ट कराना, वो पैसा हम बचाने के चक्कर में अपना करोड़ों का स्कैम करा लेते हैं। और जब मैटर इतना आगे तक चला जाता है, उस टाइम पे भी सबसे कोई फारिग किस्म का लॉयर पकड़ के उसको कोर्ट में भेज देते हैं। वो उस केस को 25 साल तक चलाता रहता है, उल्टी पुल्टी एप्लीकेशंस, पता नहीं क्या क्या उस लिटिगेशन में होता रहता है। एट द एंड ऑफ इट नो वन अंडरस्टैंड्स कि जी कौन सही था और कौन गलत था। एंड नो वन इज इवन इंटरेस्टेड टू परस्यू दैट केस आफ्टर दैट। तो एक तो आपका हो गया एडीआर और मीडिएशन वाली चीजें। दूसरी सर, सीपीसी को अगर आप पढ़ें, तो जिस ऑर्डर या जिस स्ट्रक्चर में सीपीसी बनी हुई है, हमें अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जो हमारी एक प्रैक्टिस चल रही है वो ये है कि आप प्लेंट फाइल करते हैं, आप समन्स करवाते हैं। एडवर्सेरियल सिस्टम है तो उसके अंदर जज भी उस तरह से शुरू की प्रोसीडिंग्स में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता जब तक एविडेंस और फाइनल आर्ग्यूमेंट की स्टेज पे मैटर नहीं आ जाता। सीपीसी के सर सेक्शंस हैं जिसमें आप इनिशियली डॉक्यूमेंट्स एडमिट करवा सकते हैं, डिस्कवरीज इनिशिएट करवा सकते हैं, इंटेरोगेटरीज दूसरी पार्टीज को दे सकते हैं। हम क्यों नहीं वो एप्लीकेशंस फाइल करते? अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स की एडमिशन की बेसिस के ऊपर आपका केस विदाउट इवन गोइंग इनटू एविडेंस और इनिशियल स्टेजेस पे डिसाइड हो सकता है, तो आप वो चीजें फाइल करें, उन एप्लीकेशंस उन प्रोविजंस को यूज करें। बट नहीं, वो एक पुराना तरीका है और उसी तरीके से बस लिटिगेशन को भी चलाना है प्रैक्टिस के नाम पे। तो hence those are the reasons, and then lawyers, they are also not, they don't have the motivation to finish the cases in an expeditious manner. उनको भी शायद ये होता है कि जी हमारी फीसेस लगी हुई हैं, कि लगे रहो, चलाते रहो इसको। Yes, I think that is the most, that is what I wanted to get to as well. Okay, most of the time it is also the lawyers who want the cases to go for a longer period of time rather than just getting done with it. लेकिन उसमें ये भी आ जाता है कि जब जिस बंदे ने फ्रॉड किया होता है, वो कोशिश लाजमी करता है कि मैं इसको जितना खींच सकता हूँ उसको खींचूं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, आई थिंक व्हाट आई हैव अंडरस्टूड थ्रू आउट माई करियर राइट नाउ इज, फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा 20 करोड़ रुपए उठाता है, वो एक इन्वेस्टमेंट प्लाजा बना लेता है, या उसकी वो फाइलें बेचना शुरू कर देता है। व्हाट हैपेंस इज, जब जब उसने वो 20 करोड़ रुपए लगा लिए, उसके ऊपर उसने 40 करोड़ रुपए मार्केट से उठा लिया है, वो 40 करोड़ रुपए उठा के किसी और प्रोजेक्ट में डाल देता है, और ये प्रोजेक्ट रुक जाता है अगले 5 सालों के लिए, 6 सालों के लिए। वो कोर्ट चले जाते हैं, उस पर स्टे ले लेते हैं कि हमारे साथ कोई एनओसी नहीं मिला, ये एनओसी नहीं मिला, और वो उसके ऊपर पैसे और बना लेता है। सो बाय द टाइम वो जब 5 साल 10 साल गुजर जाते हैं, उसने उस इनिशियल अमाउंट पे डबल द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी बना लिया होता है। और वो घूमो हम्म। घुमा के अगर उसके बाद वो आपको पैसे भी देता है, आई थिंक उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल, फॉर द कॉमन पीपल एट द वेरी लीस्ट,
कि वो थोड़ा सा अपने आप को अवेयर रखे अपने सर्कमस्टांसेस से, सराउंडिंग से, एटलीस्ट पता करे टू दे शुड गेट help and guidance from the lawyers, or maybe someone who has already been through that path. I think that will make their decision काफी easier. So coming to the last limb of our discussion, Emil, what are some of the reforms, in your opinion, that are needed on an urgent basis, Joe, that will help people to make better and informed decisions? सर कुछ रिफॉर्म्स जो मेरे अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मुझे लगता है आने चाहिए। देखें, लॉ तो हमारा ऑलरेडी इट इज़ इन प्लेस, बट देयर इज़ अ रजिस्ट्रेशन एक्ट, देयर इज़ अ स्टैम्प एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो वो कानून पेपर पे तो बड़ा क्लियर है। इवन दो कानून पुराना है, लेकिन एटलीस्ट वो आपको एक प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जब आप प्रैक्टिकली रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं, आप पटवार खाने जाते हैं, तो वो तो अनफॉर्चुनेटली वो डंजन्स हैं। वो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कोई गवर्नमेंट के इदारे हैं। वो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी पता नहीं दोजख तंगी में आ गए हैं, किधर आ गए हैं। और जब आप अंदर जाएंगे तो पटवारी कारपेट पर बैठा होगा और वो 100 साल पुरानी किताबें निकाल के उससे रेड पेन से उसमें पता नहीं लाइनें शाइनें लगा रहा होगा। एंड ही इज गोइंग टू थ्रो सच कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स, इनके जो पटवारियों की अपनी होती हैं, आपके ऊपर, कि इवन एज लॉयर आप सर पकड़ के बाहर आ जाएंगे कि यार ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो इसीलिए जब लोग जाते हैं, चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी का इंतकाल करवाने जाएं या अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने चाहें, उनसे ये लोग ये उनको पता होता है कि इन लोगों के पास कोई खास नॉलेज है नहीं। इनको नहीं पता कि जी रजिस्ट्रेशन के क्या चार्जेस हैं, स्टैंप ड्यूटी कितनी पे करनी है, इंतकाल कराने के कितने पैसे लगेंगे। लेट्स सपोज मॉर्गेज डीड रजिस्टर हो गई है, उस पर लियन मार्किंग अगर आपने करवानी है, उसके कितने पैसे लगेंगे। तो ये बंदे को देख के कि कितना सादा है, कितना तेज है, अपनी डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करके किसी से लाख रुपए, किसी से 2-2 लाख रुपए, ऐसे ऐसे काम जिनकी गवर्नमेंट फीस शायद 800 रुपये है, गवर्नमेंट फीस शायद 2000 रुपये है, उस पे ये लाखों की मद में लोगों से पैसे ले लेते हैं और कोई इनको पूछने वाला नहीं है। तो सबसे पहले तो इन इदारों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, इधर जो लोग अपॉइंटेड हैं वो लोग कम से कम थोड़े से ठीक हो, उनको उनकी तनख्वाहें बेहतर हो, उनको रेगुलेट करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए कोई और अथॉरिटीज हों जो उनको अकाउंटेबल ठहराएं। जब कोई बंदा आम आदमी इन इदारों में जाए तो इनके ऊपर ऑब्लिगेटरी हो जाना चाहिए कि ये अपनी दीवारों के ऊपर स्केड्यूल ऑफ चार्जेस जो है वो चिपका के रखें। अगले बंदे को तो पता हो कि यार मैं ये काम कराने आया हूँ, इसके मैंने 5,000 देने, 10,000 देने, या बस जो पटवारी मुझे बताएगा मैंने उतने पैसे दे देने। तो अवेयरनेस तो इसी तरह फैलेगी। आपको पता है डीसी रेट क्या चल रहा है पाकिस्तान, इस्लामाबाद का तो चले फेडरल टेरिटरी है, यहाँ पे तो आपको एफबीआर ने अपनी वेबसाइट पे लगाया। आप कोयटा चले जाएं, आप मस्तूम चले जाएं, आप और इस तरह के केपीके के इलाकों में चले जाएं, आपको तो डीसी रेट विच इज पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड विच शुड बी अवेलेबल एट ऑल गवर्नमेंट साइट्स, एटलीस्ट रेलिवेंट गवर्नमेंट वेबसाइट्स, वो आप लगाते क्यों नहीं है? वो आप किस लिए नहीं लगाते? क्योंकि आपने करप्शन करनी है। तो ये छोटे छोटे हफीशा साहब चीजें हैं। अगर क्योंकि कहते हैं ना, द डेविल इज इन द डिटेल्स। यहाँ पे डेविल इज नॉट इन द डिटेल्स, यहाँ पे तो एंजल इज इन द डिटेल्स। डेविल ने जो है ना वो डिटेल्स छुपा दी हैं। और अब ये डिटेल्स जब तक सामने नहीं आएंगी तब तक आवाम के साथ स्कैम्स भी होते रहेंगे और फ्रॉड भी होते रहेंगे। Yes, that तो is, you are very ये right. Uh, yes. I think that was our discussion. एक चीज, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं एक चीज और इधर ऐड करना चाहूंगा। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं इस वक्त सुन रहे होंगे, और सब अल्लाह करे इन सबको प्रॉपर्टी लेने का मौका भी मिले और सारे रियल एस्टेट में और किसी के साथ स्कैम ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे जी, आप अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री जरूर करवाएं। कोई आपको अलॉटमेंट सर्टिफिकेट दे, बोले जी ये मेरा लेटर हेड के ऊपर अलॉटमेंट है, डोंट टेक दैट, टेक दैट एज वेल। वो भी आपका एक एविडेंस है कि कल इन केस ऑफ डिस्प्यूट यू विल बी एबल टू यूज दैट एज एविडेंस बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। बट द ओनली डॉक्यूमेंट अंडर द लॉज ऑफ पाकिस्तान which can confer a title on a person is the registered sale deed, which is authenticated by a government official called the sub registrar। तो ये तो जरूर करवाएं। ये आपके पास एक बार हाथ में आ गई तो फिर जो कोई अगर पैसों से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, कोई कोर्ट केस आ जाता है, वो एक अलग चीज है जिस पे आप चल, लेकिन ओनरशिप तो आपकी एटलीस्ट बन जाएगी उस प्रॉपर्टी। I think you are very right. I think that is very important as well. क्योंकि and that is also true for rent agreements as well. Mostly यहाँ पे ये होता है कि आप जाके मिल लेते हो, रेंट आउट कर लेते हो, अपार्टमेंट रेंट आउट कर लेते हो, घर कर लेते हो, बट यू डोंट रजिस्टर इट, क्योंकि आप उस टाइम पे उस पर 500 1000 रुपये नहीं लगाना चाहते हो। लेकिन डाउन द लाइन पे जब आपका डिस्प्यूट बनता है, कोर्ट आते हो, तो फिर आपको उस पर फाइन देना पड़ता है।
I think that is very important. Registration is the first key step. लेकिन I believe most of the people are still of the opinion कि यार हम इतना लीगल चीज़ों से जितना दूर रह सकते हैं उतना ही फायदा होता है। लेकिन वो जब मिल मिला के सब कुछ आपके ऊपर आ जाता है तो फिर आपके पास भागने की कोई जगह नहीं रहती। बिल्कुल ऐसे ही है। एक रीसेंट केस मेरे पास आया, और उसके अंदर ये हुआ कि जी एक पार्टी है, क्योंकि आपको पता है रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, स्टैंप ड्यूटी भी आपने 1-2% देनी होती है, रजिस्ट्रेशन भी 1-2% देनी होती है। तो वो जो 2-2% के चार्जेस है उनसे बचने के लिए आपको जो रियल एस्टेट एजेंट है वो कहता है कि सर आप छोड़ें, क्या कराएंगे रजिस्ट्री, आप ऐसा करें कि पावर ऑफ अटर्नी ले लें, मुख्तार आमा खास जिसे कहते हैं उर्दू के अंदर, आप वो ले लें अगली पार्टी से, और इन इन सब चीज़ों को छोड़ दें और आप प्रॉपर्टी आगे बेच के पैसे ले लें। अब वो पावर ऑफ अटर्नी तो आप को रियल एस्टेट एजेंट दिलवा देता है, बट वो ये नहीं बताता कि जी ये पावर ऑफ अटर्नी पीछे से अथॉरिटी उसी बंदे के पास है उसको कैंसिल करने की। आप उसको पैसे भी दे देते हैं, आपके हाथ में एक पावर ऑफ अटर्नी आ जाती है, पीछे से वो बंदा आपकी पावर ऑफ अटर्नी कैंसिल करा के प्रॉपर्टी किसी और को बेच देता है, एंड देन अगेन यू लेफ्ट विद नथिंग। सो गेट द प्रॉपर्टी विच एवर यूर बाइंग रजिस्टर्ड थ्रू अ सेल। आपने इनएडवर्टेंटली एक उनका क्वेश्चन भी आंसर कर दिया था। सो देयर वाज दिस क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स where this one where Aisha Neem has asked why do property dealers nowadays normally take Mukhtar Amma Khas or Aam in selling properties on their behalf? बाकी तो आपने आंसर कर दिया था। डू यू वांट to briefly explain it again कि मुख्तार आमा खास होता क्या है एंड why should you stay away from it? जी बेसिकली मुख्तार आमा खास जो है एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी होती है, वो आप किसी को भी दे देते हैं अपने सारे अफेयर्स को देखने के लिए। वो आपका वकील भी हो सकता है, आपका कोई अजीज रिलेटिव भी हो सकता है। वो जब आपके पास आ जाता है तो आप उस बंदे की जिसने आपको पावर ऑफ अटर्नी दी है उसकी प्रॉपर्टी के साथ जो चाहे कर सकें। आप उसको किसी और को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, उसको ट्रस्ट पे भी पकड़ा सकते हैं, लीज पे भी दे सकते हैं। सो यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट यूजिंग दैट डॉक्यूमेंट। सो इसलिए पावर ऑफ अटर्नी जो लोग होते हैं वो खुद ही एजेंट्स को, मतलब लोग अपने लिए खुद स्कैम्स बनाते हैं। वो खुद एजेंट्स को बोलते हैं कि जी हमारा खर्चा बचाओ। तो ये सारी इतनी खर्चा क्यों बचाना है आपने? मतलब कि आपने एंड में जब फ्रॉड अपने साथ कराना है, आप जब आप उसको कहते हो खर्चा बचाओ, तो खर्चा बचाने के लिए, क्योंकि वो खुद भी इतना लिटरेट नहीं होता, उसको इतनी नॉलेज नहीं होती, वो भी मार्केट के प्रैक्टिसेस के हिसाब से चल रहा होता है, वो कहता है सर ये मुख्तार आमा खास ले लें और छोड़ें ये रजिस्ट्री वगैरह को, कल को प्रॉपर्टी को बेचें यूजिंग दिस डॉक्यूमेंट एंड गेट योर मनी। वो बंदा उस डॉक्यूमेंट को रख लेता है अपने पास ये समझ के कि यार ये शायद कोई टाइटल डॉक्यूमेंट है, बिकॉज ही इज नॉट अवेयर दैट टाइटल डॉक्यूमेंट इज ओनली रजिस्ट्री। साल बाद या 6 महीने बाद वो बेचने जाता है, तो वो पता लगता है कि जी ये जो पावर ऑफ अटर्नी तो कैंसिल हो गई थी वो चौथे दिन ही, जिस वक्त आपने पैसे दिए। तो इस वजह से ये इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बना रिलाई करो प्लीज। I think everyone that will be all from our side. And now we will open the floor for questions. So if anyone has any question, you can either drop it in the chat box or you can ask the guest as well. Okay, in case if anyone has any question, do let us know. But otherwise, इमल साहब मैं आपसे एक और ज़रूरी सवाल पूछूंगा कि जो स्टे का कॉन्सेप्ट है when it comes to the real estate matters, why are the courts so prone to give stays to people? अब फॉर एग्जांपल अगर हम अभी डेवलपर के नज़रिए से बात करें, कुछ फॉर जी एग्जांपल ये भी हो सकता है कि अगर आप एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, आपके पास आपके मार्केट में काफ़ी और लोग बैठे होते हैं, बिग फिशेस बैठे होते हैं जिनको हम बिग फिश कहते हैं। तो अगर वो लोग अगर आपके कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है और वो उनको उनके प्रोजेक्ट को ख़राब करना चाहते हैं, सो देर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि वो मार्केट में अपने फेक बायर्स भेजे, वो उनसे प्रॉपर्टी खरीद और बाद में जाके उनके ऊपर स्टे ले ले। और वो कोर्ट्स ज़्यादातर यही होता है कि कोर्ट्स उनको जो है स्टे काफ़ी आसानी से दे देते हैं कि वो उनको एक बजा के सिर्फ वही जो आप बात कर रहे थे अलॉटमेंट लेटर निकाले एज एन एविडेंस, कोर्ट उसी को मान के उनको स्टेज ग्रांट कर देती है। वाई इज़ दैट द केस एंड वाई डू कोर्ट नॉट गो इनटू, जब इनिशियली जब वो एक टेम्प्रेरी इंजंक्शन के टाइम पे या स्टे मैटर के टाइम पे वो जब उसको सुनता है, तो वाई डू दे गेट
Why उनके do लिए they इतने easily आसान grant क्यों होता है stay? कि वो स्टे क्यों इतना जल्द? Sir, यस टेक्निकली व्हाई डू दे? यस यू आर राइट। then again it's a matter of practice. आप जब सूट फाइल करते हैं तो अक्सर सिविल कोर्ट्स में तो आपने देखा होगा, स्टे जब भी आपने लेना होता है, यूर अ लॉयर एज वेल, तीन इंग्रेडिएंट्स आपने अदालत के सामने सेटिस्फाई करने होते हैं बहस करके, कि आपका कोई प्राइमा फिशाई केस है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस आपके फेवर में टिल्ट करता है, और अगर स्टे ना मिला तो आपको इररिपेरेबल लॉस हो जाएगा इससे। लेकिन ये इंग्रेडिएंट्स, द कोर्ट इज नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन टू दीज आर्ग्यूमेंट्स एट द इनिशियल स्टेज, बिकॉज ऑफ नॉट जस्ट द इनकॉम्पिटेंसी, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि केसेस और कोर्ट्स के ऊपर बर्डन भी इतना ज्यादा होता है कि वो देख लेते हैं कि जी चलें, एफिडेविट अटैच्ड है, चीजें लगी हुई हैं, डॉक्यूमेंट्स कुछ एक दो उनकी नजर से गुजर जाते हैं, तो इनिशियल स्टेज के ऊपर इंटरिम स्टे देते हुए इतना हेजिटेंट नहीं होते, और वो आपको पकड़ा देते हैं। वरना आइडियली तो ये होना चाहिए कि जिस वक्त आप स्टे के लिए फाइल करें, इवन अगर इंटरिम स्टे टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग भी आपने देना है किसी मैटर पे, तो आप सुने, अगले वकील से सुने कि वो क्या प्राइमा फेसाई की हम्म। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इरिपेरेबल लॉस के इंग्रेडिएंट्स को फुली सेटिस्फाई करके कोर्ट पे आर्गुमेंट्स पेश कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो ये हाई कोर्ट में जरूर होता होगा, आपने देखा होगा हाई कोर्ट के जजेस इन इन चीजों में जाते हैं, बट सिविल कोर्ट में अनफॉर्चुनेटली अब जैसा भी है सिस्टम, तो यही है कि स्टे लेना जरा आसान है। होपफुली जजेस की ट्रेनिंग्स के साथ और हम्म। चीजों के साथ ये बेहतर होगा। यस आई थिंक विद टाइम कि उनको थोड़ी सी सोशल अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि एटलीस्ट अगर आप, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक स्टे दिया जाता है तो उससे अरबों के प्रोजेक्ट को नुकसान होता है, और फिर उस स्टे को वेकेट करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। Okay, so one more question. I think someone has not asked any question so far. Um, One last question that I will ask you, Mr. Emil, is can you explain the concept of बयाना? हम तो काफ़ी सुनने को मिलता है कि बयाना दे दो, ये खरीद लो, बयाना दे दो। और कुछ हम्म। लोग तो ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि यार आपने बयाना दे दिया तो ये चीज़ अब आपकी हो ही गई है, हम्म। बट एग्रीमेंट कुछ नहीं होता। सो हम्म। कैन यू शेड सम लाइट ऑन दैट एज वेल? बिल्कुल सर, बयाना आप दें, और बयाना दें भी सही, बयाना लें भी सही, क्योंकि ओरल कॉन्ट्रैक्ट अंडर द लॉ इज इन्फोर्सेबल। और जब आप बयाना दे देते हैं चार बंदों की मौजूदगी के अंदर, तो आप एक तरीके से पार्ट पेमेंट कर रहे होते हैं। तो पार्ट पेमेंट इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को पार्टली परफॉर्म कर दिया है थोड़ा बहुत पैसे देने के बाद, और विटनेसेस भी हैं जिन्होंने इस ट्रांजेक्शन को देख लिया, इवन दो यू हैव नॉट रिटन दैट एग्रीमेंट इन राइटिंग, it becomes an oral contract that can be later specifically enforced। तो इसलिए बयाना इज नॉट समथिंग रॉन्ग, बयाना इज फाइन। आप टोकन मनी का कॉन्सेप्ट है, मुझे नहीं पता कि दुनिया में और कितनी जगहों पे इस तरह चलता है, बट एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड ये ठीक है, बयाने बयाना और टोकन मनी। क्योंकि कल को अगर लेट सपोज वो पार्टी रिफ्यूज कर देती है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से, तो आप एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकते हैं उस बयाने को लेके, कि जी देखें पार्ट परफॉर्मेंस हो गई है, ये हमारी अग्रीमेंट ओरल थी और अब इस ओरल अग्रीमेंट को इन्फोर्स करवाया जाए। अगर आप बयाना ना लें या बयाना ना दें, तो वो जो पार्ट परफॉर्मेंस की बेसिस पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट आपने फाइल करना है, वो फिर आप नहीं कर सकेंगे ना, फिर आप तो कहीं, फिर वो एग्रीमेंट इज एज गुड एज नथिंग, उसको तो फिर आप यूज नहीं कर सकते किसी चीज को। राइट। ओरल। ओके एमिल, अगर आप चैट बॉक्स देख भी ले, आई थिंक देर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, और I'll also read it out. So if there is a private housing society or an apartment building, what is the best way to ensure the legal title is transferred to you for an apartment that you buy? I think we did discuss this initially, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इनके लिए एक्सप्लेन कर दे दोबारा से। जी, कोई भी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, चाहे वो लैंड है या चाहे वो कोई अपार्टमेंट है, हाई राइज बिल्डिंग है, अब अच्छे अच्छे डेवलपर्स हैं, अगर आप लेट सपोज सिल्वर ओक्स में या सुखचैन में जाके अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं, तो वो आपको एक अलॉटमेंट सर्टिफिकेट दे देंगे, आप उस पर बिल्कुल रिलाई कर सकते हैं, बिकॉज दे आर अ वेरी क्रेडिबल डेवलपर। और वो कल को, क्योंकि उन्होंने इस तरह के स्कैम्स में नहीं पड़े हुए, और उस अलॉटमेंट को या उस सर्टिफिकेट को यूज करते हुए कल को आप, अगर वो इन केस कोई डिस्प्यूट आता है, तो आप इन्फोर्स भी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उस अलॉटमेंट की लीगल कोई वेटेज नहीं है। लेकिन देन अगेन, अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर ये चीज आ जाए कि आप इस अपार्टमेंट के ओनर हैं, और वो चीज एक गवर्नमेंट को ऑफिशियल ऑथेंटिकेट करे, तो वो टाइटल डीड जो है वो सिर्फ एक रजिस्ट्री होगी, जो कि एक ड्राफ्ट बनेगा स्टैम्प पेपर के ऊपर। उस स्टैम्प पे जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी डीसी रेट पे, उसकी सर्टेन परसेंटेज पे स्टैम्प ड्यूटी आप पे करेंगे, और उसको आप लेकर चले जाएंगे टू द सब रजिस्ट्रार ऑफिस विद योर विटनेसेस। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में वो आपके बयान लिखेगा, बयान लिखने के बाद वो उसको रजिस्टर करेगा अपनी बुक के अंदर,
और वहां पे आपका डॉक्यूमेंट, अब कल को इफ देर इज एनी डिस्प्यूट, द सब रजिस्ट्रार कैन कम एंड अपीयर बिफोर द कोर्ट एंड ऑथेंटिकेट एंड वैलिडेट योर ट्रांजेक्शन विद द अदर पार्टी, सो इट इज द मोस्ट सिक्योर। बस मसला ये है कि सब रजिस्ट्रार का ऑफिस बड़ा एक वही बात है, डंजन की तरह है थोड़ा सा, उधर Yes, I जरा think जा। navigating that office is an art in itself. 100%, 100%। Um, okay, so I think no one has any other question. Yes. Ahmed, do you have any question? ये आवाज नहीं आ रही जी, कांट हियर यू प्रॉपर्ली। अहमद, अगर आपका कोई और सवाल, अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो प्लीज म्यूट योर माइक। Okay, so before we leave, what is the one piece of advice that you will give? Uh, I also have a question. Yes, Ahmed. Okay, so Emil, my question is, how can overseas Pakistanis safely invest in property in Pakistan without physically being present here? And what legal safeguards should they put in place, for them to avoid being exploited? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। ओवरसीज देखें, यहाँ पे आप जितने भी हमारे बड़े डेवलपर्स हैं, चाहे डीएचए को उठाएं चाहे बैरिया टाउन को उठाएं, उन्होंने सबसे अपने जो ल्यूक्रेटिव सेक्टर्स बनाए हैं वो बनाए ओवरसीज के लिए। और उन्होंने बल्कि उसका नाम भी लिख दिया है जी, ओवरसीज सेक्टर फलाना। बिकॉज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दीज प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स, इवन इन डीएचए विच इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, वो बाहर से ही आ रही है, और ओवरसीज लोग ही यहाँ पे पैसे भेज रहे हैं। तो अब ओवरसीज के लिए ये है कि वो अगर यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले तो वो एक अटर्नी अपॉइंट करें। वो अटर्नी क्रेडिबल होना चाहिए, उसकी कोई रेपुटेशन ऐसी खराब नहीं होनी चाहिए, या वो अपने किसी जानने वाले को भी दे सकते हैं, लेकिन अक्सर जानने वाले भी फ्रॉड कर देते हैं। तो फर्स्टली Right. इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फाइंड एन ऑथेंटिक पर्सन जिसको आप अपना अटर्नी बना सकें, या आइडियली तो खुद आए। आप इतने पैसे कमा रहे हैं बाहर, तो आप आ जाएं, अपनी ट्रांजेक्शन को खुद देख लें। बट इफ यू कांट डू दैट फॉर पर्सनल रीजंस, यू गिव अ पावर ऑफ अटर्नी टू अ लॉयर और टू योर रिलेटिव, वो आपके बिहाफ पे यहाँ पे जो है वो ट्रांजेक्शन कंडक्ट करे। और जिस जैसे वो ट्रांजेक्शन हो रही है उसमें आप ओवरसीज बाहर बैठ के भी आपको पता लग सकता है। यू कैन ऑलवेज एक्सेस आरडीएस वेबसाइट। अगर आप लेट सपोज टॉप सिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप देखें सेक्टर सी में मुझे प्लॉट ऑफर हुआ है, क्या सेक्टर सी लेआउट प्लान में आ रहा है, क्या टॉप सिटी को वो एनओसी मिला हुआ है। लेट सपोज आपको लग रहा है कि यार इस प्रॉपर्टी पे कोई मॉर्गेज ना हो, तो आप उस बायर को कह सकते हैं कि यार इसका एक सर्टिफिकेट होता है विच इज कॉल्ड अ नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, एनईसी। वो आप कहेंगे All जी हमें, right. वो आप प्राइवेट डेवलपर से भी ले लें और वो आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस से भी ले लें, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं है, इस पे कोई मॉर्गेज नहीं हुआ हुआ, यू नो, दीज डिस्प्यूट्स डोंट एग्जिस्ट ऑन दैट प्रॉपर्टी। हाँ, अगर आपको ये है कि यार कंस्ट्रक्टेड रेजिडेंस है, इट्स नॉट अ लैंड, तो आप बिल्डिंग परमिट मांगे उससे, आप उसको कहें इसका अप्रूव्ड प्लान जो डिजाइन है वो किधर है जिसपे सीडीए का मोहर लगाओ। अगर प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है तो आप उससे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मांगे। तो ये चीजें मांगे, जितनी चीजें मांगेंगे और जितनी चीजें आपको दी जाएंगी, वो ये चीज शो करेगी कि यार हाँ ये चीज ऑथेंटिक है। और जहां पे वो कहेंगे नहीं नहीं सर आप ये हमारे जानने वाले हैं और ऐसे वैसे, तो ट्राई टू अवॉइड दैट। All right. Thank you so much. नो वरीज। I think I will come back to my last question again, as no one else has any other questions so far. So what is the one piece of advice that you will want to give to someone who is buying property for the first time? हु इज ट्राइंग टू बाइंग प्रॉपर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट विल बी द एडवाइस दैट आई विल गिव यू। उसका ये सर सारी चीजें जो डिस्कस हुई हैं उसी की एक कल्मिनेशन है कि पहले तो ये देखें कि प्रॉपर्टी ओन कौन करता है, और अगर आप हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर ले रहे हैं तो गवर्नमेंट ने उसको कोई सैंक्शन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। तो यही आई थिंक दो चीज़ें हैं जिनको आपने देखना है। वन पीस ऑफ एडवाइस तो यही होगा, प्रॉपर्टी का टाइटल डॉक्यूमेंट देखें, और अगर हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट करें तो देखें कि उसको एनओसी। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि चाहे एनओसी मिला हुआ है नहीं मिला हुआ, फ्रॉड आपके साथ फिर भी हो सकता है। क्योंकि ये जो हुकूमत ही अगर आपके साथ फ्रॉड करेगी तो आप क्या कर सकते हैं। सो बस ये पाकिस्तान का एक डिलेमा है, अपने आप को बचाएं जितना बचा यस सके। आई थिंक यस आई थिंक यू आर राइट। पाकिस्तान का ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि अगर आप अपने आप को बचा सकते हैं तो खुद ही बचाएं। नो वन एल्स विल कम टू सेव यू फ्रॉम एनीथिंग।
Thank you so much, Emil, for today's session, and I hope you had a good time with us. And thank you everyone for joining us for today's sessions as well. In case if you have any further questions, अगर आपके email से कोई सवाल है, अगर आपके हमारी team से कोई सवाल है, or if you have any suggestions or complaints, you can always reach out to us on our social media handles. Emil, would you want to share your social media handle with them? I think अगर आप group chat में बता दें. I will share it with you later, and if anyone wants, you can share it with them if Well, that's that is perfect. And you can also reach out to us as well if you have any further queries. Thank you so much, everyone, for the session, and hopefully we see you soon in the next one as well. Thank you, everyone, and thank you, Emil, so much for being a part, uh, being with us today. Thank you, Hafiz. Thank you so much for your time and All the inviting me to best. this. Take care. Love is everyone. Take care.